So we were discussing the finest modulus. Okay, what is finest modulus? अच्छा, ये जो content है finest modulus, these must be covered in material course. ठीक है ना, ये concrete का course में आपके नहीं है. This is just how to measure the property of sand. ठीक है, और the sand, the gradation of the sand is always assessed in terms of the finest modulus. ठीक है. What is finest modulus? Basically, it measures. It is an index property which represents the mean size of the particles in the sand. For example, आपके पास sands के जो grains of the sand है वो various sizes ऐसे होता है ना, different sizes के हैं. 0.5 mm का भी होगा, 0.1 mm का भी होगा. There can be a 1 mm size का भी होगा, 2 mm size का भी होगा. There are different sizes of the particle present in the sand. So the gradation क्या होती है? Basically, distribution of the percentage of the size of the particle is known as the gradation of the sand. So, and what is the finest modulus? Finest modulus is basically ये index property है. It is calculated as the sum of the cumulative percentage retained on each CU. Each CU पे जितनी retain होती है ना, the cumulative retain को sum करते हैं. The sum of the cumulative retain on each CU divided by 1000 divided by 100 gives you the value of the finest modulus, which is represented in term of FM. इसको FM बोलते हैं ना, finest modulus. ठीक है ना. अच्छा, इसका what is the significance of FM? ये जो ना आपसे कोई पूछ सकते हैं ना. The significance of finest modulus is basically it is the indexed number which represents the mean size of the particles in sand. Mean size मैं आपको बताता हूँ कैसे measure करेंगे. And it is always measured as the sum of the cumulative percentage retained on each CU divided by 100. ठीक है. और इसका जो significance क्या है? This value is used in concrete to assess the amount of percentage of coarse segregate in total amount of the concrete. ठीक है ना. This value, through this value FM and the maximum size of aggregate, FM and finest modulus of sand and maximum size of coarse aggregate, maximum size of coarse aggregate, we can get the ratio of the coarse aggregate to concrete. For example, if the ratio of the coarse aggregate to concrete is 0.6, this means 60% of the concrete has coarse aggregate. समझ आ रही है ना. इसका ये significance है. Without FM value, we can't calculate the ratio of the coarse aggregate to the concrete. ठीक है ना. Just knowing the value of FM and the maximum size of the coarse aggregate, we become able to calculate the ratio of coarse aggregate, rather compacted coarse aggregate to the unit volume of the concrete. So it varies. This value varies. कौन सी value जो ratio है वो वेरी करती है between 0.56, 0.6, 0.7, 0.72 sometime. आपको मैं टेबल दिखाऊंगा तो उसमें पता लगेगा. The fine aggregate क्या होते हैं? Means कौन से aggregate होंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं. Fine aggregate means the aggregate which passes through CU number 4, mean CU having the size of 4.75 mm. तो 4.75 mm से जिस ग्रेन का साइज कम है तो वो क्या होगा? फाइन एग्रीगेट उसको बोलते हैं. ठीक है. टू फाइंड फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट वी नीड सीरियल नंबर ऑफ सीयूज. सीयूज का जो है खास स्पेशल टाइप ऑफ सीयूज है ना. तो इसमें यहाँ पे तो 6 नंबर 6 सीयूज दी गई ना. 6 सीयूज आर गिवन. फॉर एग्जांपल सीयू नंबर कौन सी है? इसको जो ना मतलब वो करेक्ट बोले ना, इवन नंबर में आप बोले सीयू नंबर 5 mm,
नॉट नंबर, CU 5 mm, CU 2.5 mm, 1.25 mm, 0.6 mm, 0.3 mm and 0.5 mm. These are the 6 CUs. इस पे रिटेन आप देखेंगे, लेकिन in some code, for example ASTM code कहते हैं कि there is another CU which is 10 mm size, 9.5 mm, 9.5 mm, ये CUs भी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को जो CU बाइफरकेट करती है, तो उससे ऊपर जो है एक नंबर CU से ऊपर भी होनी चाहिए। ये जो 7 CUs हों, इन 7 CUs को ऊपर नीचे रख के ऐसे, तो इसमें आपने सबसे पहले जो जो इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे CU में आप जितना भी वेट ऑफ द एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करके इसमें डाल देते हैं, और CU शेकर से जो हम CU शेकिंग करते हैं, और उसमें जितना भी जो रिटेन हमें मिलता है आफ्टर 1 आवर और 30 मिनट्स, जितना भी टाइम होता है ना CU शेकिंग का, तो उसमें कुमुलेटिव रिटेन होता है ना, रिटेन मिलता है। इस पे भी रिटेन होगा, इंडिविजुअल रिटेन होगा, देयर मस्ट बी इंडिविजुअल रिटेन एट दिस CU, इस CU पे भी अलग रिटेन आएगा, इस पे भी अलग रिटेन आएगा, इस पे भी अलग रिटेन आएगा, इस पे भी रिटेन आएगा। एंड देन देयर इज अ पेन, पेन समझते हैं, जो नीचे आपके पास जो है ना, जो जो लास्ट CU है उससे पास हो गया, जो पेन पे पास हो गया उसको काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 CUs आर गिवन, ठीक है ना। और नॉर्मल ASTM में 7 CUs होती हैं, लेकिन 6 भी गिवन है तो कोई इशू नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाई नॉट वी आर यूजिंग द 7 CU। 7 CU पता क्या क्यों यूज नहीं करते, मैं उसकी बताता चलूं जी। कुछ बात कर रहे थे आप सर, ये आपने जो मेंशन किए पीछे CU साइजेस, तो ये फाइन एग्रीगेट के लिए सर। फाइन एग्रीगेट के होंगे, मैं बताता हूँ कोर्स एग्रीगेट की अगर फाइनेंस फाइंड करनी है, फाइनेंस मॉड्यूलस, तो वो जो CUs होंगी ना कोर्स एग्रीगेट वाली, वो उसके ऊपर प्लेस करेंगे, ओके सर। ठीक है ना। तो ये CUs तो उसमें भी होंगी, ये CUs तो कोर्स एग्रीगेट की फाइनेंस मॉड्यूलस में भी होंगी, लेकिन इसके ऊपर कुछ CUs जो है ना उसकी कोर्स एग्रीगेट वाली अपनी CUs हैं, वो भी होंगी, ठीक है ना। तो और इंक्लूडिंग दिस CU, तो इसका जो फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ सेंड बेसिकली वेरी करता है 1.3 टू 3.2, इस पे वेरी करता है ना। तो अगर आपके पास फाइनेंस मॉड्यूलस इस रेंज में फॉल करे ना, तो बाय डिफॉल्ट आवर मीन इज फाइन सेंड, सही है ना। तो अगर कोर्स एग्रीगेट की फाइनेंस फाइंड करनी है, फाइनेंस मॉड्यूलस आप कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू वेरी करती है 0.5 to 7 और 6.5, ठीक है ना। ये इस वैल्यू, ये बेसिकली इंडेक्स्ड है, इसके यूनिट नहीं होते, ठीक है ना। वो जो समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही जी है सर। अच्छा, तो ये आपने मुझसे नहीं पूछा कि सर बाद केसेस में 7 CUs यूज होती हैं, एंड बट एट हियर इन एग्जांपल आई एम रिप्रेजेंटिंग यू, आई एम टेलिंग यू इज द 6 CUs, 6 नंबर CUs। आप देखो ना, काउंट करो ना, 6 CUs है ना, तो वेयर 7 CUs क्यों ऐड नहीं की, आप मुझसे सर। पूछ वो सकते हैं, उससे सर जरूरत नहीं है जी। आपने मेंशन किया, स्टैंडर्ड का मेंशन किया कि ASTM के स्टैंडर्ड में हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली एक तो STM स्टैंडर्ड है, और दूसरा इस तरह होता है ना कि जो ग्रेन 7.47 पे रिटेन होंगे, इधर लिसन, ये जो CU है ना, चूंकि सैंड है ना, तो इस पे तो रिटेन आपके पास आएगा, यस सर। आएगा, बोलो बच्चे। सर 4 पे नहीं आएगा सर। 4.75 पे नहीं आएगा ना, पास हो जाएगी ना सैंड। नो सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि इधर यहाँ पे रिटेन 0 है, क्या है, 4.75 mm पे 0 रिटेन है। इससे ऊपर वाली जो CU होगी उस पे भी रिटेन डेफिनेटली 0 होगा ना, जो Yes, चीज sir. इससे पास कर Yes, सकती sir. है तो उससे भी पास, समझ आ रही है ना। तो इसलिए ऊपर CU रखने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। 6 CU से भी काम चला सकते हैं, समझ आ रही है? यस सर, समझ गए सर। ठीक है। अच्छा, अभी देखें, अभी लिसन, हियर इज द CU साइज, आपके पास CU साइज है
आपने 1000 ग्राम आपके पास जो है ना वो था, सैंपल साइज था, तो आपने सीयूज एनालिसिस किया, उसके बाद आपके पास रिटर्न किया आया। पहली सीयूज पे कितना था आपके पास, इस सीयूज पे रिटर्न आया, सीयू नंबर 4 पे आपके पास 0 रिटर्न आया, सीयू नंबर 2 पे फॉर एग्जांपल 100 रिटर्न आया, सीयू नंबर जो वो थी सीयू नंबर 8 पे 100 आया, और बाकी जो सीयू साइजेस थी उन पे डिफरेंट रिटर्न आए ना आपके पास। देखो ना, कहीं पे 250 है, कहीं पे 350 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 100 है। समझ आ रही है ना बच्चों? यस सर। यस सर। दिस इज द रिटर्न ऑफ द सैंड। अब ये सैंड का रिटर्न आ गया आपके पास, रिटर्न। तो इसको जो ना कुमुलेटिव रिटर्न क्या होगा? अब 0 मीन 0 रिटर्न है, कुमुलेटिव रिटर्न समझते हैं? यस सर, Yes, काउंट करते हैं, sir. ऊपर वाला Sir, काउंट करते हैं सर। जमा करते हैं सर, ऐड करते हैं क्यों ऐड करेंगे कुमुलेटिव में? सर, ताकि मतलब वो सर पूरी कि- वो सर आ जाए क्यूमुलेटिव सम होता है ना। जी हाँ, सम होता है बिल्कुल। मैं एक और एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। ये सीयूज है ना, अब इस सीयू पे फॉर एग्जांपल आया जनाब कितना है, 100 है। इस सीयूज पे कितना रिटर्न हुआ? 250 250। अगर ये सीयू हम निकाल भी देते तो इस सीयू पे कितना रिटर्न होता? 350। 350। तो बेसिकली इससे ऊपर जो है ना वो रिटर्न हो रहा है ना, सारा रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पहली जो सीयू है उस पे 0 रिटर्न हो रहा है, दूसरी सीयू पे 100 रिटर्न हो रहा है, और तीसरी सीयू पे 350 रिटर्न हो रहा है। इसके जो ना इंडिविजुअली तो 250 रिटर्न हो रहा है, लेकिन 100 तो ऊपर रिटर्न हो गया ना, तो नीचे नहीं आ सका। अगर वो नीचे आता तो वो रिटर्न हो जाता। सिमिलरली सीयू नंबर आपके पास नॉट नंबर सीयू 0.6 mm जो है, इसमें 350 रिटर्न हुआ इंडिविजुअली, लेकिन कुमुलेटिव रिटर्न कितना होगा? 350 ऊपर रिटर्न हुआ था, तो कितना हो गया? 700 हो गया। इस तरह जो है ना इसको सम करते जा रहेंगे पिछले पिछले डिजिट में। कौन से डिजिट में? इस नंबर में। तो अगर इसमें कुमुलेटिव रिटर्न फाइंड करेंगे ना, तो इधर इन सबको जमा करें इसमें, और यहां से ही जमा कर लो, इसको जमा कर लो इसमें, तो देन यू विल गेट दिस रिटर्न, कुमुलेटिव रिटर्न। एंड आप लास्ट में आएंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, ये जो ना रिटर्न हो गया 1000। तो इन सब की परसेंटेज फाइंड करें। तो ये 1% है, परसेंटेज है ना। अब देखो ना, दिस इज 1000, 1000 का 1000% कितना होता है? 1000 का 1000 डिवाइडेड 1000 into 100 कितना होगा? 100% होगा। इसका ये कितना 90% है, 70% है। तो ये जो परसेंटेज है इनका सम करें, कितना आपके पास सम होगी? 275। तो ये आपके पास जो ना कुमुलेटिव परसेंटेज है, द सम ऑफ द कुमुलेटिव परसेंटेज इज 275. So this is not the finest modulus. Finest modulus will be the sum of this percentage divided by 100. ठीक है ना? तो आपके पास कितनी होगी अब? 2.75 2.75 2.75। अच्छा, 2.75 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बॉटम से आप देखो ना, आपके पास साइज क्या है? ये साइज कौन सा है बच्चों? 0.15। अच्छा, और ये वाला कौन सा साइज है? 0.3। 0.3 mm, और ये कौन सा है? 0.6 mm, 0.6 है। 0.6 mm सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिस इज 1, here is 2, this one is 3। तो आपका साइज क्या है? आपकी कुमुलेटिव परसेंटेज क्या आ रही है? द फाइनेंस मॉडुलस क्या है? 2.75। 2.75। This mean your average size, the mean size of the sand is between this number 0.3 and 0.6 mm, इसके बीच में है। तो 0.47 या इस तरह है होगा, 47 या 0.5 के आसपास होगा। ठीक है ना? तो आप देखो ना, ये जो ना इसमें ऐसे इसको रीड करते हैं, इट रिप्रेजेंट द एवरेज मीन साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सही है ना? द वैल्यू यूज्ड in term of calculating the percentage of coarse aggregate, not percentage, the ratio of the coarse aggregate to the unit volume of the concrete. So it was fineness modulus. It was all about the fineness modulus.
आपको जो ना अभी आपको अंदाजा होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंस मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हम कहाँ स्लाइड पे थे ना, स्लाइड नंबर 16 पे थे, मॉर्निंग में जो क्लास थी बच्चों, यहाँ पे थे ना। यस सर, यस सर, यहाँ यहाँ पे पे। थे। नाउ यू नो द फाइनेंस मॉड्यूलस, if the finance modulus is 2.4, what does this mean? 2.6, 2.83, ठीक है ना, ये सेंड के लिए है। तो डिफरेंट फाइनेंस मॉड्यूलस पे आपके पास मैक्सिमम एग्रीगेट साइज गिवन है, एंड देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट के यूनिट वॉल्यूम में कोर्स एग्रीगेट की क्या फ्रैक्शन आती है, समझ आ रही है ना। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कोट करता हूं, दिस वन इज 20 mm, कितना होगा 20 mm कोर्स एग्रीगेट है, और आपने फाइनेंस मॉड्यूलस कितनी है 0.26, दिस वन। तो इसमें आपके पास क्या साइज होना चाहिए, दिस मस्ट बी दिस वन, सॉरी दिस विल बी, ये जो रीड आप करें यहां से इससे ग्राफ से, तो देन you can find out the percentage of coarse aggregate in the concrete. Concrete में coarse aggregate कितने होंगे, this is 60.6 and this is 0.7 and this is slightly more than this that one. देखो ना यहाँ पे कितना है 2 का है ना 4 और 6.645, 0.64 होगा सर, 0.64 कर दें, चले 0.64 कर दें, टेबल में भी है सर यहाँ। ठीक है। अच्छा टेबल से भी आप देख लें, अच्छा इधर देख लें, तो ये कितना है एग्जैक्टली 0.64। तो 0.64 जो है 0.64 मीन 64% ऑफ योर कंक्रीट इज कंपोज्ड ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना। तो फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है, इन दोनों से हम फाइंड करते हैं आपके पास कोर्स एग्रीगेट की रेशियो क्या बनेगी कंक्रीट की रेशियो से, कंक्रीट की टोटल कंक्रीट से। What should be the ratio of coarse aggregate to the unit volume of the concrete? For example, if the ratio is 0.45, 0.64, this means 64% of your ये वॉल्यूम होगा या वेट होगा, 64% of your of concrete is composed of coarse aggregate बाय वॉल्यूम होगा सर, by volume, exactly, ठीक है ना। आप देखो ना वॉल्यूम आपको इस रेशियो से, तो आपको कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम पता लग गया कि कोर्स एग्रीगेट का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली अब एयर कंटेंट आ जाए, एयर कंटेंट पे आपको जो ना एयर कंटेंट इन कंक्रीट डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है ना। इफ एक्सपोजर टू द फ्रीजिंग एंड थॉइंग, इफ द फ्रीजिंग थॉइंग एक्सपोजर इज हाई, सो वी नीड टू कीप हायर अमाउंट ऑफ द एयर कंटेंट, ठीक है ना। इफ देयर इज अ मॉडरेट एक्सपोजर, उसमें एयर कंटेंट आप जो ना फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 4 to 5% आप रख लेंगे। if it is severe exposure, then 5 to 6% पे आप आएंगे, up to 7%. then if there is a no exposure, तो कोई एक्सपोजर नहीं है ना, आप देखो ना, तो एयर कंटेंट मस्ट बी लोअर देन 2%, 2% से कम है ना बच्चों। अच्छा आपने इस पे एक और चीज आप देखनी है आपने, आप देखेंगे विद द इंक्रीज ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, तो एयर कंटेंट कम से कम होते जा रहे हैं। कौन बताएगा क्यों कम हो रहे हैं, शाबाश। सर क्योंकि जब साइज इंक्रीज होता है तो सर वर्केबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है, तो एयर कंटेंट की चलो फर्स्ट आप बता दें। जरूरत नहीं। सर क्योंकि ये सीमेंट पेस्ट में होगा, ये जो बबल्स बनेंगे सीमेंट पेस्ट में बनेंगे, जब हमारे पास मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इंक्रीज होता है तो वो वाले साइड डिक्रीज होता है सैंड और सीमेंट का। अब देखो ना इधर लिखा है, अब देखो ना mortar content decreases as the maximum size increases, ठीक है ना। चूंकि पेस्ट में होगी ना एयर कंटेंट, डिक्रीजिंग द रिक्वायर्ड एयर कंटेंट,
एयर कंटेंट को डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि पेस्ट की अमाउंट कम होगी, जितनी पेस्ट की अमाउंट कम होगी तो उसमें एयर की अमाउंट भी कम से कम होती रहेगी। समझ आ रही है ना? जी सर। तो आपने एक और चीज नोट करनी है। अब देखो ना, स्फीयर एक्सपोजर है, स्फीयर एक्सपोजर पे आपके पास एयर कंटेंट कम से कम भी है। अब देखो ना, इफ वी आर इंक्रीजिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, तो हमें उस लेवल पे अब मजीद हमें जो एयर कंटेंट हमें कम रिक्वायर्ड है। इफ वी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट, दिस मीन वी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पेस्ट। जितनी पेस्ट की अमाउंट ज्यादा है तो हमें जो ना उसकी जो रिक्वायरमेंट है एयर एंटेनमेंट की वो भी ज्यादा है। समझ आ रही है ना? दिस इज कन्वर्सली। सर सिमिलरली ये एक्सपोजर जब ज्यादा होता है ना तो ये एयर कंटेंट भी ज्यादा होता है। क्या चीज ज्यादा होती है? सर ये सेवियर एक्सपोजर में सर ये एयर कंटेंट क्यों ज्यादा है? एयर कंटेंट क्यों ज्यादा है? सेम नॉमिनल मैक्सिमम साइज पे। समझ नहीं आई मुझे। सर ये सेवियर एक्सपोजर में सर हम एयर कंटेंट ज्यादा क्यों रखते हैं सर? ज्यादा रखते हैं हम ना, जितना भी एक्सपोजर हमें जो ना, जितना एक्सपोजर मीन के ये एक्सपोजर टू दी फ्रीजिंग एंड थाइंग है बच्चे, वो एक्सपोजर नहीं है। फ्रीज था एक्सपोजर मीन कंक्रीट इज ससेप्टेबल, मोर ससेप्टेबल टू फ्रीजिंग एंड थाइंग। ठीक है ना? आपके पास जो है ना, जैसे आपके पास स्वाद का हुई स्वाद, चित्राल के लोग हैं सर। चित्राल के लोग हैं, तो बर्फबारी कभी कभी होती है, तो वहां पे जो एक्सपोजर है वो माइल्ड है। जहां पे आपके पास सीजनल बर्फबारी होती है तो वहां पे जो एक्सपोजर है वो क्या है, मॉडरेट है। तो देयर आर सम प्लेसेस के जहां पे जैसे जो है ना, आपने कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बनानी है किधर, सियाचिन पे या कारगिल पे, तो वहां पे आपके पास हाई सीवियर एक्सपोजर होगा। ठीक है? वो तो सारा साल बर्फ पड़ती रहती है, फिर था होती रहती है। ठीक है ना? ओके। तो अच्छा, तो सीवियर एक्सपोजर पे आपके पास जो है ज्यादा जो कंटेंट आपको क्यों रिक्वायर्ड है? आपने ये क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका बड़ा लेंथी जवाब है बेटे। ये ना मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्यूरेबिलिटी इश्यूज, तो उसमें मैं आपको जवाब ना दूं। सही है सर, सही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एयर जो बबल्स हैं ना, बेसिकली इंटरनली वो क्या करते हैं, उनका कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं फ्रीजिंग थाइंग इफेक्ट को। ठीक है ना? ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, उसमें पढ़ लेंगे। आप मुझे remind करना है, ठीक है? ओके सर, ओके। अच्छा, अभी जो स्लम्प है, slump requirement in concrete is basically governed by the by your workability requirement। आपकी जो workability है या consistency, कितना आपको जो concrete flow required है, तो उस लेवल पे आप slump फिक्स करते हैं। Basically slump is not dead way in design। आपने slump को क्या करते हैं, अब डिजाइन में ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो को आप जो ना फिक्स आप जूम कर लेते हैं। जूम कैसे करेंगे? आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग द डीप बीम, ठीक है ना बच्चों, इफ यू आर डिजाइनिंग ए डीप बीम, द कंक्रीट फॉर डीप बीम, so this mean you need a higher slump value. If you are designing concrete mix for slab, for lean concrete और harsh concrete, ठीक है ना, आपके पास या और the element of a concrete whose depth is lower than the 10 सेंटीमीटर, उसकी डेप्थ इससे कम है। ठीक है ना? तो उसके लिए फिर आपको जो है ना थोड़ा बेस्ट आप वो देंगे, स्लम्प साइज कम से कम हो। ठीक है ना? जितना कम हो इतने अच्छा है। 10 mm भी चलेगा, 12 भी चलेगा, ठीक है ना, 15 mm भी चलेगा। समझ आ रही है ना? तो बट फॉर डीप बीम, so you need slump more than 100 mm। ठीक है ना? 10 सेंटीमीटर से ऊपर हो। समझ आ रही है ना? यस सर। तो सिमिलरली स्लम्प की बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है कि क्या है, क्या है आपके पास स्लम्प कितना होता है, 25 to 50, 75 to 100,
and 150 to 175. आपके पास 3-4 जो ना बेसिकली क्या है आपके पास, these are the groups. तो इन ग्रुप में उनकी वैल्यूज होती हैं. तो स्लम्प, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द स्लम्प जो हम इसको फिक्स करके, एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, बेसिकली इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द वाटर इन क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल मैं कोट करूं, इफ द स्लम्प इज 19 नहीं, if the coarse aggregate size is 20 mm or 19 mm and slump requirement is 100 mm, so what should be the water content in cubic meter of concrete? ये होगी 205. ठीक है ना. for non air intense concrete, for non air intense concrete, ठीक है ना. for air intense concrete is it will be different. वो कितना होगा? 184. ठीक है ना. वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी. क्यों कम होगी भाई वाटर रिक्वायरमेंट एयर इंटेंस केस में? उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है ना जी. एयर वो आपने से उसको वर्केबिलिटी ज्यादा है. एग्जैक्टली. जो एयर कंटेंट इंड्यूस हुए ना, तो उसने वर्केबिलिटी को कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है ना. आप तो यार कंक्रीट आपको तो सही समझ आएगी. क्लासिक. आपने कहा था कि ये बाल बेयरिंग्स की तरह एक्ट करती हैं. एग्जैक्टली. तो वो पेस्ट में जितनी जो एयर इंड्यूस होती है, एयर जो है ना इंट्रेंड होती है, तो उस हिसाब से क्या होती है, उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है. तो आपके पास जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होगी. ठीक है ना. सही है. तो आप देखो आपके पास कोर्स एग्रीगेट का भी पता लग गया. आपके पास क्या रेशो, किस रेशो से आपके पास कंक्रीट में आ रहा है बाय वॉल्यूम. आपके पास अभी वाटर का भी पता लग गया. तो इफ यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, बच्चों, the strength of the concrete is कितनी हो, फॉर एग्जांपल 35 मेगापास्कल. तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगी फॉर नॉन इंटेंस कंक्रीट? 0.47. बच्चों, Yes sir, 0.4. and you know the water content from slump and maximum coarse aggregate size. सीमेंट की अमाउंट आप फाइंड कर सकते हैं दिस रेशियो से. कर सकते हैं ना. Yes sir, कर सकते हैं. This is water to cement ratio. This is water to cement ratio, and we know the water amount. So and you become able to calculate the amount of the cement. Right? Yes sir. और अभी है ना आपको वाटर भी पता लग गया, आपके पास कोर्स एग्रीगेट भी आपको पता है कितना है, आपके पास सीमेंट भी आपको पता है, एंड देन ओनली क्या चीज रहेगी कि भाई सैंड रहेगी ना पीछे. Yes sir. तो सैंड इजी है. अभी देखे ना, आपके पास कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम पता है, आपको वाटर का वॉल्यूम पता है. वॉल्यूम यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे होगा? जैसे 200 लीटर है, 200 केजी है, तो 200 लीटर होगा ना वॉल्यूम ऑफ वाटर. Yes sir. और क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होगा? फॉर एग्जांपल 0.64 cubic meter was your coarse aggregate. ठीक है. अगर 200 लीटर है तो दिस मीन 0.2 cubic meter is your water. ऐसे ही है. सिमिलरली जो सीमेंट अमाउंट है, तो इफ सीमेंट अमाउंट इज आपके पास 50% है, अराउंड 50% है, तो कितनी है? फॉर एग्जांपल 400 केजी. तो 400 केजी को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगी वॉल्यूम में 400 केजी? ठीक है ना. क्यों डेंसिटी क्या होती है? 400 लीटर होगा ना सर. लीटर ये सीमेंट है भाई. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ऐसी होती है ना. तो यू नो द मास एंड यू नो द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट. You can find out the volume of concrete can be found out, cement can be found out, volume of cement can be found out by dividing the mass over its density. मास कितना है? 400 kg पर क्यूबिक मीटर ना. तो डेंसिटी कितनी होगी? 4 मीटर. तो डेंसिटी विल बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 3.15
मल्टीप्लाइड बाई ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1000 इज दी डेंसिटी ऑफ द वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर में, तो क्या हो जाएगा आपको? डेंसिटी ऑफ सीमेंट आ जाएगी ना। यस सर, डेंसिटी ऑफ Yes, sir. सीमेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सर। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? आप शाबाश ये कैलकुलेट कर दो। सर वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया सर, सीमेंट आ गया, तो बात तो वॉल्यूम सीमेंट आप जो है ना 0.4 को 3.15 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है ना ये वॉल्यूम आ जाएगा। करो शाबाश 0.4 को तो ये 0.126 आता है इससे। 6.126। ठीक है ना, 0.126। Here is the volume of cement। ठीक है, तो अब इन तीनों को आप सम करें तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट माइनस सैंड आ गया ना। आया कि नहीं आया? इसको Yes, सम sir. करो ना, कितना सम आएगा? शाबाश। दिस विल बी, करो ना यार, 6 आएगा। 6 अपनी जगह पे है। 4 + 2 6 हो गया। हाँ 6 हो गया ना। और 6 + 2 + 1 9 हो गया। ऐसे ही है ना, 9 नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में सर 0.036 जी 1 से माइनस करेंगे ना ये टोटल सर, फिर 1 से माइनस करेंगे तो ये आता है सर फिर 0.036 पॉइंट 0.036 0.03 यस सर। ऐसे रॉन्ग है यार, ये कुछ फर्क है यहाँ पे। देयर समथिंग रॉन्ग। 0.96 0.034 आ रहा है। 0.034 034 सर, 0.034। ओके, हम जो है ना इसको बाद में फिर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये आपके पास जो है ना सैंड आ गई है फॉर एग्जांपल, तो सैंड का वॉल्यूम है। सैंड के वॉल्यूम को आप फिर कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो इसमें मैंने एक वॉल्यूम मुझसे रह गया है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का वॉल्यूम कितना है? इफ द एयर वॉल्यूम इज 2%, तो उसमें भी वो भी ऐड करेंगे 0.02 वो भी ऐड होगा। ठीक है ना, ये सारे सम होंगे। सम होके ये जो कोर्स क्रिएट है ना, इसका वॉल्यूम ऐसे ऐड करते हैं। मैं आपको जो ना अगली क्लास में बताता हूँ। मैं भी जो ना जस्ट आई फॉरगॉट हाउ टू मेंशन दिस वन। सर ये सारा मिक्स डिजाइन टेबल से करेंगे सर? टेबल से करेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा मिक्स डिजाइन। ये अभी मैं बता रहा हूँ जस्ट मिक्स डिजाइन होता सर कैसे ये है। एक दफा रिपीट कर दें सर, ये रिपीट कर दें एक दफा, नहीं सही समझ आई। ये आगे फिर अगली क्लास में मैं करवाने लगा हूँ इसको। मैं वैसे ही मैं बताना चाह रहा था। इस पे सर प्रॉब्लम पड़ा है तो प्रॉपर क्लास करेंगे। अभी आपने ना, अभी असाइनमेंट आप लिख दें, ये मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करके दें कि आपने ना, आपके पास 20 स्पेसिमेन हैं एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस डेटा। बेसिकली मिक्स डिजाइन में ना स्टैंडर्ड डिविएशन का जो डेटा कैलकुलेट होता है ना, उसमें यूज होता है। तो ये आपने 20 स्पेसिमेन है और उसकी 20 स्पेसिमेन की ये स्ट्रेंथ आ रही थी। ठीक है बच्चों, ये सर वो सिर्फ मैथमेटिक्स के फार्मूले से करेंगे। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से कर लें। तो ये जो वैल्यू होगी ना आगे, फिर उस वैल्यू को हम यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में, अपने न्यूमेरिकल में। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। और सर इसको सर ये असाइनमेंट नंबर 6 करते हैं सर। साइड नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। क्या असाइनमेंट है सर? सर इसका लिंक बना दें, हम कर देंगे अपलोड। ठीक है, लिंक बना दूंगा जी। ठीक है, थैंक यू सर। चलें ओके जी। तो और क्वेश्चन है? नहीं सर कोई कुछ नहीं। सर स्लाइड्स कुछ कहना चाह रहे हो बात? नहीं सर सर, मैं क्या तो नहीं नाम बोला है, जब था। एयर कंटेंट ज्यादा होता है तो पानी कम चाहिए होता है हमें। जैसे आपने वो आगे एक चीज करवाई थी स्लाइड से, वो जरा रिपीट कर दें सर।
स्लाइड में यस सर, वो आगे आपने करवाया था कि अगर एयर कंटेंट ज्यादा हो जाए तो हमें पानी कम चाहिए होता है, वो ऊपर था, वो जरा रिपीट कर दें कॉन्सेप्ट। एक मिनट just I need to stop this recording.